مری کی صورتحال کے بارے میں، جہاں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے، ہزاروں گاڑیاں برف میں پھنس گئی ہیں، ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، 22 افراد سخت سردی میں ٹھٹر کر لقمہ اجل بنے۔ پاک فوج، رینجرز، ایف سی سمیت دیگر ریسکیو ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے مری کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید خود ریسکیو کاموں کی نگرانی کے لیے مری پہنچ گئے ہیں۔ مری میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی، ہزاروں گاڑیاں برف میں پھنس گئی، ہنستے بھنستے گھر اجڑ گئے، 22 افراد سخت سردی میں ٹھٹر کر لقمہ اجل بنے۔ مری اور گرد و نواح میں برف باری نے قیامت ڈھا دی، ہزاروں گاڑیاں رات بھر برف میں پھنسی رہیں، سیاحوں نے رات بے یار و مددگار برف میں دبی گاڑیوں میں گزاری۔ جاں بحق افراد میں 10 بچے بھی شامل۔ اسلام آباد پولیس کا ASI نوید اپنے اہلیہ اور 5 بچوں کے ہمراہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ جاں بحق افراد کا تعلق کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مردان اور گجرانوالہ سے تھا۔ افسوسناک سانحے پر وزیر اعظم نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پنجاب حکومت نے مری کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ سیاحوں کے لیے سرکاری گیسٹ ہاؤس کھول دیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید خود ریسکیو کاموں کی نگرانی کے لیے مری پہنچ گئے۔ شیخ رشید نے کہا، امدادی کاموں کے لیے پاک فوج کے 5 پلاٹون، رینجرز اور FC کو طلب کیا گیا ہے، جو برف ہٹانے اور پھنسے ہوئے سیاحوں کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ پوری انتظامیہ، آرم فورسز اور رینجرز کو بھی طلب کیا اور FC کو بھی فوری طلب کر لیا اور پیدل آرمی کو بھی طلب کیا تاکہ لوگوں کو گاڑیوں میں سے اور جو پھنسی ہوئی گاڑیاں نکالی جا سکیں۔ مری کے علاقات میں بھی سیاحوں کی ہزاروں گاڑیاں پھنسی رہیں۔ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر سیف نے نیوز 1 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ریسکیو اہلکار گاڑیوں میں پھنسے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ اتوار کی دوپہر تک برف باری کا سلسلہ رکنے کا امکان ہے۔ اونچے پہاڑوں پر برف باری کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ ظاہر ہے 3 جنوری سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے ناردرن ایریاز میں، اور کل صبح تک کی کسی علاقے میں ہو سکتی ہے، لیکن بیشتر جگہوں میں آج مڈ نائٹ تک یہ اسپیل جاری رہے گا۔ مری اور گلیات میں پھنسے لوگوں کے پاس ایندھن، خوراک اور ادویات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ مری میں برف باری میں پھنس کر اہل خانہ سمیت جاں بحق ASI نوید کی آخری آڈیو کال کی ریکارڈنگ نیوز 1 نے حاصل کر لی۔ انہوں نے کال میں کہا کہ برف باری زیادہ ہوئی ہے، روڈ بلاک ہے، برف ہٹانے والی گاڑی نہیں پہنچی۔ بچے پریشان ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کرے کوئی سسٹم بن جائے اور ہم یہاں سے نکل جائیں۔ چلو آج احمد پتہ لگتا نا تیرا بھی بھائی تم کتنے پانی ہے مزہ تو ہے نا، صبح تک اسی نکل جائیے یا کم از کم اور نہیں تو کرین شروع کر دے نا، پھر کوئی بندے نو آڑ لگ جاندی بھئی یار چلو خیر ہے کوئی نہیں ہو جاسی انشاءاللہ۔ بھائی جان ساڑھے کو تو لگی پئی نے، ساڑھے کو تو نہ رک دی پئی، مری شاید رک گئی ہوئے، بس اللہ کرے یار کوئی سسٹم بن منجے، بہت پریشان ہو گئے۔ مری میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو کی جانب سے سانحے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ مرنے والے سیاحوں کی تعداد 22 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس کے ASI نوید اقبال اپنی اہلیہ اور 6 بچوں کے ساتھ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مری میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو کی جانب سے سانحے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تفصیلات جاری کر دی۔ مرنے والوں سیاحوں کی تعداد 22 ہو چکی ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس کے ASI نوید اقبال اپنی اہلیہ اور 6 بچوں کے ساتھ خالق حقیقی سے جا ملے۔ مری میں شدید برف باری اور ٹریفک جام کے باعث مرنے والے سیاحوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ مرنے والوں میں زاہد ولد ظہور، کمال آباد، گاڑی کیری بولان، اشفاق ولد یونس گجرانوالہ، کار نوید اقبال ولد مراقب، ASI اسلام آباد پولیس، ہمشیرہ نوید اقبال، عمر اور ان کی 4 بیٹیاں، 2 بیٹے بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ اسد ولد زمان شاہ ملدان، محمد بلال ولد غفار مردان، محمد بلال حسین ولد سید غوث خان کراچی، محمد شہزاد ولد اسماعیل راول پنڈی، اہلیہ مسز شہزاد عمران، ان کے 2 بچے بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ پاک فوج کے شاکو چوبند دستے مری کے سیاحوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ مری میں کنٹرول ڈویژن قائم کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق APS اور آرمی اسکول آف لاجسٹک کلڈانا میں ریسکیو مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ تمام کیمپس میں ہیٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے، ہیوی مشینری کے ذریعے برف کو ہٹایا جا رہا ہے۔
मरी में पाक फौज की जानिब से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने वाले मेजर जनरल वाजिद अजीज कहते हैं पाक फौज की जानिब से 2 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मजीद कहा लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मी चीफ की हिदायत पर बंद रास्ता खोलने की कोशिशें भी जारी हैं। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई तो उस वक़्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफर्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं। मौसम जितना भी सर्द हो, मौसम जैसा भी हो, जब तक आखिरी सयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम पर तक नहीं पहुँच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है वो जारी रहेगी। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज का कहना है कि गलदाना, बाड़ियां, शीका गली में शदीद बर्फबारी के बायस ज्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पाक फौज ने मुतासरा मकामात पर रिलीफ कैंप कायम किए हैं। चेयरमैन NDMA ने मजीद कहा कि फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने कहा है कि मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम सामान मुहैया कर दिया गया। कोशिश कर रहे हैं फ्यूल और खुराक की कमी न हो। मजीद कहा पाक फौज और रेंजर्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। मरी और मुल्हिका इलाकों को आफतज़दा करार देकर एमरजेंसी नाफिज कर दी है। कहा 4 गाड़ियों में मौजूद लोग जाँ बहक हुए, शनाख्त का अमल जारी है। FWO और NLC भी मदद कर रहे हैं और जो मौके पे फ़ौज के हुकाम हैं वो भी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, बल्कि फ़ौज और रेंजर से भी मुआवनत तलब की गई है और वो भी उसमें मौके के ऊपर हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इस रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमारा हाथ बटा रहे हैं। एक जो कंसर्न है वो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की फराहमी के हवाले से और फूड सप्लाईज़ के हवाले से है, तो तमाम तर वो ट्रैफिक जो गुड्स लेके जा रही है उसको वहाँ जाने की इजाज़त दी गई है और जो वहाँ पे मौके के अफसरान हैं वो खुसूसी तौर पे नज़र रख रहे हैं कि कहीं पे फूड की शॉर्टेज ना हो, पेट्रोल और डीजल की ना हो। DG गलियात रजाली का कहना है कि सयाहों को पहले ही मरी की सूरत हाल से आगाह कर दिया था। 15,000 से ज़ायद सयाह होटल्स में मौजूद है। वो न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। एक स्पेल में शायद ही पहले कभी इतनी स्नो हुई है। 5 से 6 फुट तक स्नो अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी है अंतेगली और चंगलगली साइड पे गलियात के इलाकों में। हमने कल दिन से ही सारे टूरिस्ट को गलियात के रास्ते बंद कर दिया था कि कोई भी टूरिस्ट मजीद गलियात नहीं जा सकता। अभी तक तकरीबन हमारे पास जो होटल्स में तादाद आ रही है 10 से 15,000 टूरिस्ट हमारे पास होटल्स में मौजूद हैं। हमने कल रात 11 बजे तक तकरीबन 8,500 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया था एबटाबाद साइड से। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं है हमारे पास, ना ही कोई टूरिस्ट अभी तक कोई गाड़ी में मौजूद है। बराह रास्त लिए चलेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद के हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि तमाम गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। लोगों से अपील है कि मरी का रुख न करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मरी से न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हिकमत अमली की बात नहीं, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई। अपोजिशन का काम ही बयानबाजी और तनकीद करना है। कभी सोचा नहीं था मरी में इतनी बर्फबारी होगी। वो वज़ीर आज़म को हालात से आगाह कर चुके। अल्हम्दुलिल्लाह इधर मरी साइड तो सारी कंट्रोल है। गुलडन्ना, खैरा गली, फासरा गली, नतिया गली, इस तरफ फौज काम कर रही है और मशीनें पहुंच गई हैं, कटर आ गए हैं और तमाम गाड़ियों को चेक कर लिया गया है। किसी गाड़ी में कोई और आदमी नहीं है और हमारी कोशिश होगी ये अगर ये रोड खुल जाए तो हम इनको KPK को भी बंद कर देंगे, वापस करें उस तरफ से KPK की तरफ। सिर्फ आपसे ये अपील है कि इन लोगों से कहें कि मरी का रुख ना करें। हमने इनको रोका हुआ है, वहाँ सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं और वो बिला वजह अमन और अमान का मसला पैदा कर रहे हैं। ये कोई हालात नहीं है मरी जाने के। अगर हमने रोका है तो इंसानियत की भलाई के लिए लोगों को रोका हुआ है। 22 आदमी जो हैं हमारे पास शुहदा हैं। 22 लोग जो हैं, 16 एक गाड़ी में थे, 4 और 2, 16 और 4 20 और 21 और 22 लोग। उनको तो काम चाहिए, उनको तो बयानबाजी चाहिए, कोई भी मसला हो। अब देखें इतनी दुनिया अगर मरी का रुख करेगी और अभी भी जो लोग लाहौर और दूसरे शहरों से आए हैं पैदल का दाखिला भी मैंने मरी की तरफ बंद कर दिया। वो लोग मेरे खिलाफ लगे हुए हैं।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मरी में बर्फबारी का कई साला रिकॉर्ड टूटा है। एक्सप्रेस वे मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम रास्ते खोल दिए हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अपोजिशन पर तनकीद की और कहा अपोजिशन की सियासत कुएं के मेंढक जैसी है। 48 घंटों के अंदर चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बर्फ़ पड़ी है, कमिश्नर मरी जो है वो कह रहे हैं कि ये कई सालों का, जो कई दहाइयों का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है बर्फ़ का। एक्सप्रेस वे जो है वो तकरीबन अब क्लियर हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए हैं। लोगों की इवैक्यूएशन का काम जो है वो जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जिनको आज उस जगह पे जिस हलके से वो मुंतखब होते हैं, बजाय इसके कि वो उस हलके में हों, लोगों की मदद करें, वो रावलपिंडी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। अपोजिशन की सियासत अहम नहीं है, वो तो एक बेचारे जो हैं वो कुएं के मेंढक हैं। उन्होंने जो भी काम होना है उसके ऊपर चलाना ही है, तो टटराना ही है, उसके ऊपर उसकी अहमियत नहीं है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मरी में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 25,000 गाड़ियाँ क्लियर करा चुके हैं। नए साल के मौका पर भी 1.25 लाख गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई थी। कई इलाकों में अभी भी मीडिया की रसाई नहीं है। तकरीबन रात को 6 बजे से लेके कल शाम के आज सुबह तक तकरीबन 25,000 के करीब गाड़ियां जो हैं वो इस साइड से जो है वो क्लियर करवाई गई हैं। अभी भी एबटाबाद की तरफ जो रोड जाती है मरी से, क्योंकि वहां पे 7 से 10 फुट के करीब बर्फ पड़ी है। जो हमारी जो पिछली हिस्ट्री है 10-15 साल की, उसमें शायद कभी भी इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई। ये एक बड़ी वजह है। नॉर्मली जब बर्फबारी होती है तो उसके स्पेल होते हैं, बर्फ पड़ी उसके बाद वो साफ हो गई, फिर और बर्फ पड़ी। इस दफा ये हुआ कि वो कंटिन्यूस पड़ी है और उसकी सफाई के लिए उस तरीके से मौका नहीं मिल सका या वक्त नहीं मिल सका। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि कारकुनों को कहा गया है मरी में लोगों की मदद करें। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था आज के इजलास में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात और टिकट्स के इजरा पर बात हुई। वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात समझते हैं नए जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। जो आज के जो अंदोनाक वाक़या है, तकलीफदेह वाक़या है, इस पे मीटिंग में भी बहुत ही अफसोस का इजहार किया गया और पार्टी कारकुनों को, सारे पंजाब के जो कारकुन हैं और जो तंजीमें हैं, उनको ये कहा गया कि वो अपने अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं लोगों की वो करें। जो लोकल गवर्नमेंट का आगे इलेक्शन आ रहा है उस सिलसिले में तंजीमी मामलात में गुफ्तगू हुई, किस तरीके से टिकट दिए जाएंगे, किस तरीके से इलेक्शन में हम जाएंगे, उसके ऊपर बड़ी तफसीली बहस हुई। पार्टी जो है वह मिल के सबको एक नए तरीके से, एक नई स्पिरिट के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सानह मरी को इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा बेहतर होता मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। मरियम नवाज बोली हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत है, बहुत पहले मर चुकी है। चौधरी शुजात, परवेज इलाही, हमजा शहबाज समेत दीगर ने भी अफसोस का इजहार किया। सानिया मरी पर मुल्क भर की फिजा सोगवार, सियासी क़यादत का भी रंजो गम का इजहार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाक़े को इंतजामी नाअहली और मुजरमाना गफलत करार दे दिया। कहा यह हुकूमत की इंतजामी सलाहियत का आलम है। सयाह इतनी बड़ी तादाद में जा रहे थे तो हुकूमत को क्यों पता न चला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जाबाग होने वाले सयाहों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कहा मरी सानिया पर पूरा मुल्क सोगवार है, बेहतर होता मरी में सयाहों को संगीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाता। नून लीग की नायब सदर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरी सानिया ने दिल हिला कर रख दिए। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये मुर्दा जमीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही मरी सानिया पर इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमजा शहबाज ने कहा लोग ठिठर कर मरते रहे, इंतजामिया नींद के मजे लूटती रही। दूसरी जानिब MQM, जमात इस्लामी, JUI और दीगर पार्टीज ने भी सानिया मरी पर अफसोस का इजहार और जांबाग अफराद के लिए दुआए मगफिरत की।
नून लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुक्मरानों को आवाम की कोई परवाह नहीं। वुज़रा नाकामी छुपाने के लिए मुतासरीन पर इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए हैं। NDMA और महकमा मौसमियात पहले ही रिकॉर्ड बर्फबारी का बता चुके थे। इंतजामिया अभी तक फंसे हुए सयाहों तक नहीं पहुंच सकी। प्लान मौजूद है, मैंने बताया हर साल प्लानिंग होती है, इसका एक निज़ाम है। गाड़ियाँ फंसती हैं, गाड़ियों को अलहदा किया जाता है, सड़क खोली जाती है, उससे मामला तय होता है। यहाँ तो किसी ने परवाह ही नहीं की। गाड़ियाँ जब फंस गई उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी वहाँ पर जा नहीं सकती। उसके हमने 6-7 साल पहले शहबाज साहब खुद यहाँ पर सड़कों पर गए, हम भी साथ थे, MNA MPA तमाम उस इलाके के लोग साथ थे, और हमने गाड़ी जाकर लोगों को हमने जो भी मदद हो सकती थी वो की, और 6 घंटे में सारा मामला क्लियर हो गया था। वो बातें अपनी जगह पर हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत के तमाम वसाइल इस्तेमाल करके जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मुश्किल दूर की जाए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सानहा मरी पर हुकूमत से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ये लोग जब तक रहेंगे हर रोज एक नया बहरान होगा। मजीद कहा, मरी में गुज़श्ता रात सयाहों पर क़यामत गुजरी है। क्या 1 लाख गाड़ियां गिनना ही हुकूमत की जिम्मेदारी है? शेख रशीद किस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे थे? 1 लाख से ऊपर गाड़ियां जो है वो दाखिल हो गई हैं, तो क्या इन्हें उस वक्त ये सुझाई नहीं दिया कि इन 1 लाख गाड़ियों का जो है वो इनका इनखला भी होना है? उसका कोई वहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं उनकी वहाँ पे कोई जो है वो उनको रेगुलेट भी करना है। ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ये सिर्फ बताना लोगों को इनकी जिम्मेदारी थी कि जनाब 1 लाख गाड़ी जो है ये दाखिल हो गई है। और कल रात जो वहाँ पे लोगों पे क़यामत गुजरी है, लोग पूरी फैमिली जो है वो साथ लोग बच्चों के साथ जो है वो सर्दी में ठिठर के जो है वो अपनी गाड़ियों में जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और अब ये सुबह जो पिंडी का शैतान है ये अपना बूथा दिखाने के लिए मीडिया के ऊपर कि जी मैं आके यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैं यहाँ आके जो है वो जो रेस्क्यू जो चल रहा है ऑपरेशन में उसकी निगरानी कर, किस ऑपरेशन की वो निगरानी कर रहा है? वो क़यामत तो रात गुजरी है।